say D is the diameter. Correct. So what is the force acting on the piston? P into D. So force is equal to pressure P into not D, Area of that the- is pi by 4 D square. Pi by 4 D square. This is the force which is pushing the piston down. Now each piston has got two positions, which are called, uppermost position is called TDC or top dead center, and the lowermost position which is somewhere here will be called BDC. And why they are called top and bottom dead center? Because this is the position at which the piston will stop moving. As it goes up, it stops moving upward. That is why it is the uppermost or the top dead center. Then it starts moving downwards, comes to the lowermost position, so bottom dead center. The distance traveled between the two is called the stroke. So if you, this is L, is the stroke. Stroke of piston. Meter. It is measured in meter. Diameter is also in meter square. Diameter is in meter, area is in meter square. And P is the pressure, correct? What is the unit of pressure? Newton. Unit of pressure. Yeah. Newton meter square. Also we know 1 bar equal to 10 raised to power 5 Newton per meter. 1 bar pressure is equal to 10 raised to power 5 Newtons per meter square. That I am telling you because eventually when on board we are measuring, we have the instruments which are giving us in bar, but calculation will be on SI units. All units have to be SI. So pressure के हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेना पड़ेगा, diameter in meters, and the stroke of the piston also in meter. Now let us see, when this piston moves from here to here, it does some work. So what is the work done by the piston? If a unit force moves the object to 1 meter distance, we say 1 Newton meter work has been done. Force into distance. So here P is the unit of the P into 5 by 4 B square. This is the force which is acting and moving it by a distance of L meters. Therefore the work done is this force into L. And the unit will be Newton meter. Which is it? Which is very clear from here, because this is in Newton per meter square and meter. So Newton meter is the eventual result of this equation. Now, power. What is power? Anybody? हाँ ठीक है, बोलो बोलो, सही कह रहे हैं। कौन बोलता था ये? Power is rate of doing work. Power is Dr. Depaul. rate of doing work. Lately, रियलाइज हार्ट रेट में शक्तिमान पड़ा हुआ है कोई 40-50 GB का. Which means work done per second अपने बच्चों को देना. is the power. So if I multiply this, so power will be equal to
P into, so I'll instead of keeping pi by 4 here, it is simply I'll keep A. A is the area, because these are two fixed value for a particular engine. D, you can't change the diameter of the cylinder liner or piston. So as per the question we will calculate. So P into A is, this is the force, and L is the stroke of the engine. This is the work done, and rate of doing work, that means per second how much work is being done, that is power. So I multiply by N. This will give me work done in watts. 1 Newton meter, 1 Newton meter per second is equal to 1 watt. Okay. So that means if I use this relation, force into distance, that is the pressure into this force into the distance L, work done, and N. Now what is N here? That is the most important point here in this equation. RPM. अभी बोला नहीं मैंने कुछ हैं? L is the stroke. जितना number of not strokes. N is number of power. एल लीमा इज कॉल्ड स्ट्रोक, यानी कि टॉप से इसका बीच का डिस्टेंस। और लेकिन ये जो एन आ रहा है नवंबर, ये क्या है? N is the number of power strokes per second. मतलब देखिए वर्क डन कब हो रहा है? जब आपका फ्यूल जल रहा है, दैट इज द टाइम योर the energy in the fuel is being converted into work done. So only in power stroke you are getting power. यस। Only जब फ्यूल जल रहा है तभी तो पावर मिल रही है। और जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है, for a 2 stroke engine, for 2 stroke, number of power strokes per second, or N is equal to, कंप्रेशन इंजन हमारे होते हैं गाड़ियों के आईसी इंटरनल कंप्रेशन। RPM by 60. Why? The reason I tell you, in a 2-stroke engine, when the crankshaft turns 1 complete rotation, there will be 1 power stroke. है ना? Only 1 power stroke. तो अगर मान लीजिए उसकी RPM 120 है, तो 1 सेकंड में कितने पावर स्ट्रोक होंगे? 120। 120 by 60. RPM is revolutions per minute. So अगर उसको 60 डिवाइड करूँगा तो revolutions per second आ गया ना? 2 revolutions per second. और एक revolution में आपकी पावर ये है, और n revolutions per second हुए तो multiplied by n. And what is n? Is number of strokes per second. जितने 1 सेकंड में पावर स्ट्रोक होंगे, उसको मैं वर्क डन से मल्टीप्लाई करूँगा तो रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाएगा ना? n by 60. n number of power stroke is RPM by 60. RPM is revolutions per minute. 1 मिनट में 120 RPM अगर हैं, तो 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस होंगे? 2। अगर 2 रेवोल्यूशन हुए तो 1 रेवोल्यूशन में 1 पावर स्ट्रोक हुआ है, तो 2 रेवोल्यूशन में 2 पावर स्ट्रोक होंगे। तो 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा अगर, तो मेरी पावर आ जाएगी। यस और नो? एक पावर स्ट्रोक में यहाँ पे n हो गया, नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक पर सेकंड, उससे मैंने मल्टीप्लाई किया। सो 2 स्ट्रोक इंजन अगर है तो पावर विल बी इक्वल टू वर्क डन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक इन ए सेकंड, 1 सेकंड में। लेकिन अगर यही इंजन 4 स्ट्रोक है तो 2 रेवोल्यूशन में 1 पावर स्ट्रोक होता है 4 स्ट्रोक में। इसका मतलब है इसका हाफ हो जाएगा, है ना? सो फॉर सिंप्लिसिटी व्हाट आई कैन से, वैल्यू ऑफ n is RPS for 2 stroke and n is RPS by 2 for 4 stroke। 4 स्ट्रोक इंजन, क्योंकि उसमें आधे हैं ना, 2 रेवोल्यूशन में 1 पावर स्ट्रोक है, तो वर्क डन तो मुझे 2 रेवोल्यूशन में 1 ही मिलेगा ना।
RPS सब क्या Revolution per second. per second, ओके पर सेकंड। सर हाफ नहीं हो जाएगा इसमें? हाफ हो गया ना n/2। अगर आरपीएस है जो भी है, मान लो आरपीएस अभी 2 आया आपका इस वक्त, अगर 120 से चल रहा है, सो व्हाट इज आरपीएस 2। 1 सेकंड में 2 रेवोल्यूशन है उसके, ठीक है। तो इसका मतलब 2 पावर स्ट्रोक हो जाएंगे ना 1 सेकंड में। तो इसलिए मैं I'll use n as RPS 2 वैल्यू आ गई। लेकिन अगर यही इंजन सेम आरपीएम पे चल रहा है और 4 स्ट्रोक इंजन है, तो इसके हाफ पावर स्ट्रोक होंगे पर सेकंड, यानी कि 120 क्योंकि 2 रेवोल्यूशंस में 1 होगा। तो 120 से चल तो रहा है, यानी 120 डिवाइड बाय 62 फिर ठीक है। 2 आ गया, फिर divide by 2, फिर 1 1 आ गया, फिर 1 आएगा, है कि नहीं? 2 रेवोल्यूशन तब होंगे तब 1 पावर स्ट्रोक आएगा 4 स्ट्रोक में, तो हाफ हो गया ना उसका नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक्स पर सेकंड। तो सर अगर जो मेरा 4 स्ट्रोक इंजन है और आपकी एग्जांपल, हाँ, अगर वही एग्जांपल हमने लिया था, मैं सिंप्लिसिटी के लिए 120 लिया था कि कट जाए आराम से। मान लो आरपीएम मेरी है इज 120, 120 आरपीएम पे चल रहा है। यस सर, 2 पहले 2 की बात अभी इसको पहले बोलो व्हाट इज आरपीएस, रेवोल्यूशन पर सेकंड इज 2। 1 सेकंड में 2 रेवोल्यूशन है उसके अंदर, और 2 स्ट्रोक में हर रेवोल्यूशन में 1 पावर स्ट्रोक होता है, ये है। हमें तो पता पावर स्ट्रोक कितने हो गए इस एग्जांपल में? 2 हो गए ना, पर सेकंड 2। देयरफॉर पावर कैलकुलेशन में n की वैल्यू 2 आएगी इस एग्जांपल में। और इसी एग्जांपल में अगर मेरा ये 4 स्ट्रोक इंजन हो, तो आरपीएस तो मेरी 2 है ही है, लेकिन 2 रेवोल्यूशंस में 1 पावर स्ट्रोक हुआ, तो नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक कितने हो गए? 1। तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी n की 1 आएगी, ठीक है। ठीक है ना, नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक्स पर सेकंड। सो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द पावर। सो n, इसलिए n इज नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक्स पर सेकंड। और अगर 2 स्ट्रोक है तो n इज आरपीएस, अगर 4 स्ट्रोक है तो आरपीएस बाय 2, है ना? इज इट क्लियर? यस सर, किसी को डाउट है? लिखने दो। So what we get here, so this is my power। इस पावर को मैं सिंपल कैसे लिख सकता हूँ? पावर इज इक्वल टू प्लान। ये बढ़िया बताया सर आपने। PL ये एरिया है, टेक्नोलॉजी प्लानिंग करता रहता प्लान, और आंसर मेरा वॉट्स में आएगा, क्योंकि अगर मैं P की वैल्यू लेता हूँ न्यूटन और मीटर। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, हम नॉर्मली P की वैल्यू लेते हैं बार में, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं जहाज पे। तो अगर P इज इन बार, देन इट विल बी प्लान into 10 raised to power 2, because 1 bar is 10 raised to power 5, है ना? 10 raised to power 5 है ना? 1 bar is equal to 10 raised to power 5. So इस अगर मैं बार में लिया मैंने इसको, इफ आई कैलकुलेटेड इन, अगर हम वैल्यू बार में करूँ तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो कितना होएगा ये? अगर मैं 10 raised to power 2 नहीं लेता हूँ, I am not taking this प्लान का प्लान ही रखता हूँ जैसे था हमारा, just because of the units, and if instead of Newton per meter square I am checking the value in bar, तो लेकिन कन्वर्ट मुझे फॉर्मूले में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा? नहीं, 1 bar is equal to 10 raised to power 5, है ना, न्यूटन में। तो प्लान का प्लान ही रहा ना, इतने वॉट्स, बिकॉज आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो 1 bar is equal to 10 raised to power 5, लेकिन so this will be this into 10 raised to power 5, और should I write here? ये लिख लिया ना आपने? यस सर। ओके, इधर आ नहीं, पिस्टन वाला बताओ। हाँ? ये लिख लीजिए। ये नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन मुझे चाहिए बाद में। अच्छा हम वो वाला मिटा देते हैं। चलो बता दो। भाई से कॉपी कर लेंगे। तो इसमें प्रेशर है। पावर, अभी एक स्टेप और लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पावर इज इक्वल टू प्लान ना, प्लान।
मैंने बरड मतलब छोड़ दिया था बीच में। और ये इसमें पी किसमें है? न्यूटन। अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है तब तो ये फार्मूला करेक्ट है मेरा, और आंसर है वाट्स में। सो मेनी वाट्स इज द पावर, बट सिंस आई एम यूजिंग पी एज बार, तो आई हैव टू कन्वर्ट बार इनटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मैं कन्वर्ट कर देता हूँ प्लान इनटू 10⁵ वाट। This and this is same, है ना? Only thing is now I have converted it to Newton per meter square. अब मैं क्या करता हूँ कि वो वाट्स इज ए वेरी स्मॉल यूनिट है, हमने किलो किए हो गए, तो हम वी यूज इंस्टेड ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किलो न्यूटन पर मीटर, बिकॉज पावर ज़्यादा है हमारी। तो व्हाट आई कैन डू इज प्लान into 10⁻³ into 10⁻², the same thing ना, वाट्स। लेकिन अगर मैं इसको निकाल दूं यहाँ से और मैं कहूँ कि P इज इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10⁻³ is 1000, that means instead of न्यूटन किलो न्यूटन हो गया। Therefore my power will be man into 10⁻², answer will be in kilowatt instead of watts। अगर पावर किलो वोट में दीजिए पावर, हाँ किलो, क्योंकि 10⁻³ न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन, और जब किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो गया मेरा ये, तो ये इंस्टेड ऑफ वाट्स इट बिकम्स किलोवाट। तो फाइनली मेरा जो फार्मूला बना प्लान इनटू 10⁻² किलोवाट बना। अब इसमें यूनिट्स ध्यान रखने वाली हैं इन दिस फार्मूला। दिस इज पावर, नाउ P इज इन बार। अभी तो हमारा ये सब चक्कर हुआ है ना, P हम मेजर कर रहे हैं बार में, L मीटर्स में, A मीटर स्क्वायर में, एरिया 5/40 स्क्वायर मीटर स्क्वायर में, और N, व्हाट इज RPS। N इज नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक्स पर सेकेंड। ठीक है ना, कंफ्यूज ना करें, वो फिर हम बाद में देखेंगे। टू स्ट्रोक है तो आरपीएस, नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक्स पर सेकंड विल बी आरपीएस इन केस ऑफ 2 स्ट्रोक, एंड आरपीएस/2 होगा 4 स्ट्रोक में। लेकिन है ये एक्चुअली नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक पर सेकंड, नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक्स। पावर स्ट्रोक वो है जिसमें फ्यूल जल रहा है मेरा ना। 2 स्ट्रोक में एक रेवोल्यूशन में, हर रेवोल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक है, और 4 स्ट्रोक में 2 रेवोल्यूशन में एक बार फ्यूल जल रहा है। सो इन केस here n is the number of power strokes per second is equal to RPS for 2 stroke engine and is equal to RPS/2 for 4 stroke। Clear है? Is this okay now? Yes sir। Anybody who has not understood can ask me, because this is the basic of the CI engine. What is D? What is अजय? बार में अब आप उसको जब न्यूटन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 10⁻⁵ कर दोगे। उसके आगे 10⁻³ करके किलो करी, किलो अलग डिवाइड बाई 10⁻³ उसमें इंटू, अच्छा हमने वैसे बेसिकली एक अगर आप वॉट में ले रहे हो तो वो आएगा, किलो वॉट में ले रहे हो। और अगर आप इसको बार, इसको नॉर्मल अगर न्यूटन मीटर में दिया हुआ है तब तो सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपको बार वाले में दे दिया तो 10⁻⁵ है, अगर आपको किलो वॉट में निकालना है फाइनल आंसर, जबकि जब बार में दिया हुआ है तो 10⁻²।
मिली टेनिस टू 3 गॉट कन्वर्टेड इनटू किलो। क्योंकि आप ऐसे भी टेनिस टू पावर 5 होगा तो 1000 से डिवाइड ही करोगे ना, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी सीधी बात, सीधी सीधी। और It सीधा is ये different from पहला वाला petrol engine दूसरा वाला because ध्यान रखना। वो लगाते हैं ये watt में जब आता है स्पार्क इग्निशन। और वो जब आप लोग स्पार्क प्लग होता है पेट्रोल इंजन में, स्पार्क होता है तब जलता है फ्यूल। यहाँ पे कोई स्पार्क प्लग नहीं है। जब हम एयर को कंप्रेस करते हैं तो गर्म हो जाती है एयर, है ना। तो उस हीट से ही जब ऑटोमाइज फ्यूल जाता है उसमें तो जल पड़ता है। तो हमें कोई अलग से इग्नाइटर की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको CI कंप्रेशन इग्निशन, हीट ऑफ कंप्रेशन से चलता है, इसलिए CI। पेट्रोल इंजन में स्पार्क इग्निशन कहलाते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन, बिकॉज इंटरनल कंबशन हो रही है। वो उसमें है तो ये भी इंटरनल कंबशन है। These are all internal combustion engines. सर जो 10 की पावर 2 वाला फॉर्मूला पावर जो है किलो न्यूटन में देता है वो यूज करना है ना। अगर प्रेशर बार में दिया है, अगर प्रेशर बार में दिया है तो 10 की पावर ये भी वही है एंगल। तो ये Report. ये आएगा ये वाला फार्मूला। दिस इज द फार्मूला। नहीं वो उठाए हुए किलोवाट में कर दिया ना मैंने इसको। उठाए हुए नहीं है, सही है। तो 10 की पावर 5 वाला कौन सा है? यही है, ये ठीक है। 10 रेज़ टू पावर 5 को मैंने स्प्लिट कर दिया, 10 रेज़ टू पावर ये 3 वही into 10 बना। रेज़ टू पावर 2, 10 रेज़ टू पावर 3 इज किलो। पहले ये न्यूटन मीटर पर सेकंड था ना, अब 10 रेज़ टू पावर 3 मैंने निकाल दूंगा तो किलो न्यूटन हो जाएगा, तो आंसर किलोवाट में आ जाएगा। मींस अगर प्रेशर अगर बाहर में दिया वो फॉर्मूला यूज करना है। एक ही फार्मूला यूज करना है, यही फार्मूला जो बना, दिस इज द फार्मूला यू विल बी यूजिंग। पावर इज इक्वल टू प्लान इनटू 10 रेज़ टू पावर 2। अब P इज इन बार, अगर बार की जगह किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दें, है ना, तो फिर ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। दिस इज ओनली इन बार। तो अगर आपको किलो न्यूटन है तो बार में कर लो कन्वर्ट, क्योंकि इस फार्मूले में P इज इन बार।